Hello students, now our topic is there 1.3 History of Commerce in India. Topic number 1.3 History of Commerce in India. Beta, as we seeing commerce this time at this stage, it was not like that in the older times. Okay, as the commerce of meaning is there, that carrying of goods from the place of production to the place of consumption is called commerce. But in the older times it was at very low stage, and that we can say it was at the starting stage. In beginning there were some stages, बहुत सारे स्टेजेस बेटा ये मीन इसमें आफ्टर पासिंग दैट स्टेजेस नाउ इट इज एट दिस लेटेस्ट स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज वाज देयर बार्टर सिस्टम स्टेज. बार्टर सिस्टम स्टेज. सेकंड वाज देयर आफ्टर सम टाइम विलेज इकोनॉमी स्टेज. विलेज इकोनॉमी स्टेज. थर्ड वन इज देयर मनी invention stage. It was third stage. Fourth, town economy. Town economy stage. Then industrial revolution stage, and last one communication and transport development stage. But these were the stages, divided in stages from the very beginning to the this time, the prevailing time. So now we are explaining this. Number one, barter system stage. So barter system stage, as you know, barter system beta, in that system one thing is exchanged with some other thing, because in that village economy stage was there, and the persons, villagers, and they generally exchanged, they produced with other persons as they were produced. But that barter system was there. It was very much popular at that time, because the very much important reason was that there was no any standard was there कि जिसको वो in exchange of that they exchange, and though no money standard was there, it means they exchanged their production with other persons as they were produced. So it means at that time, जैसे for example one person is producing, एक व्यक्ति गेहूं पैदा कर रहा है, and some other person is producing cloth, वो कपड़ा पैदा कर रहा है. तो बेटा वो जो गेहूं जो प्रोड्यूसर है, गेहूं को पैदा करने वाला है, वो अपने यूज़ के लिए गेहूं रख लेता है, एंड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट वो उसको एक्सचेंज कर लेता है with the producer of cloth. In this way that system was prevailing at that time. Then village economy stage. Beta, in this stage the जो public at that time, people was divided in tribes. Tribes में बटे हुए थे वो, and further the tribes were divided in villages. ठीक है. And in villages, better there was system was there कि some villagers was doing cultivation, agriculture, वो agriculture करते थे, and some persons was doing business. ठीक है. इस टाइप से उनको डिवाइड कर रखा था उन्होंने अपने आप को. एंड जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, दे प्रोड्यूस्ड द फूड ग्रेन्स, जो भी वो पैदा करते थे, क्लॉथ वाज देयर,
तो बेटा अपना जो यूज़ जितना उनको करना था, आफ्टर लेफ्ट देम उतना रखने के बाद वो द रिमेनिंग पार्ट वो उसे सेल कर देते थे, जो कि एट दैट टाइम दे वर डूइंग बिजनेस। ठीक है, इस टाइप से जो सामान वो पैदा करते थे वो कुछ अपने पास रख लेते थे एंड सम अदर वो दूसरे बिजनेसमैन को सेल कर देते थे ऑफ द सेम विलेज और सम डिफरेंट विलेज, एंड इन दिस वे दैट टाइम they were using their production. Third one is their money invention stage. Beta money invention stage, in this stage actually what was there, no standard of exchange was there. कोई भी उनके पास एक पैमाना नहीं था, जैसे आज के टाइम में करेंसी है, हम उसके बदले में कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो एट दैट टाइम नॉट लाइक दैट। तो एक्चुअली करते क्या थे, तो बेटा उस टाइम में उन्होंने स्टैंडर्ड एक बना लिया था, फूड ग्रेन्स वाज द स्टैंडर्ड, जिसके बदले में वो अपना सामान मतलब एक्सचेंज करते थे। यू कैन सी, जैसे अब हम अपना कोई प्रोडक्शन बेच के जो फार्मर है और रुपया वहाँ से कलेक्ट कर लेता है, तो लेकिन उस टाइम में क्या करते थे लोग, जो भी विच एवर दे प्रोड्यूस्ड, जो पैदा करते थे उसके बदले में उनको गेहूँ के बदले, उसके बदले में उनको गेहूँ मिल जाता था, सम टाइम उसके बदले में क्लोथ्स दे कैन गेट। तो जो मनी का जो काम है, करेंसी का जो काम है, वो फूड ग्रेन्स से उसको स्टार्ट किया गया एट दैट टाइम। देन बेटा टाउन इकोनॉमी स्टेज, और उसके बाद जो है गेहूं और चावल और कपड़े के बाद में देयर वाज सम कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर मेटल्स, वो स्टार्ट उसके बाद हो चुके थे। देन टाउन इकोनॉमी स्टेज वाज देयर। बेटा इन दैट स्टेज, टाउन इकोनॉमी स्टेज में क्या था, देयर वाज विलेजेस एंड सिटीज, दीज टू टाइप्स आर देयर। इन विलेजेस द जो विलेजर्स थे दे वर प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, वो पैदा करते थे लाइक क्लॉथ्स, एंड द सिटीज सिटीजन्स जो लोग थे, जो लोग शहरों में जो शहरी लोग थे, दे वाज डूइंग बिजनेस। ठीक है, इन दिस वे विलेजर्स सेल देयर जो प्रोडक्ट्स हैं, देयर प्रोडक्शन टू द सिटी पर्सन्स, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे कैन बाई देयर नीडी थिंग्स। देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज। अब बेटा इन दिस स्टेज इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड, दैट मीन्स देयर वाज power driven machines was there, that was invented, and now production was started at large scale, and you can say sugar manufacturing was there, cloth manufacturing, textiles machinery was there। तो different type की मशीनीकरण, we can say कि मशीनीकरण वहाँ पे शुरू हो गया था, and business was started at the large scale। Next one is their communication and transport development stage। बट एक्चुअली जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी कॉमर्स है, एक मतलब एक जो है एग्जैक्ट लेवल इट अटेन एट दिस लेवल, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन वाज स्टार्टेड, रेलवे वाज स्टार्टेड एंड रोड ट्रांसपोर्ट वाज देयर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, फैक्स सिस्टम, जो कि लेटेस्ट आज की डेट की बात बेटा यहाँ पे की जा रही है, मोबाइल फोन्स आर देयर, टेलेक्स इज देयर, ठीक है, एम बैंकिंग इज देयर। तो मोबाइल बैंकिंग है बेटा, वो जो स्टेज है, लेटेस्ट स्टेज इज देयर, एंड एक्चुअली नाउ आवर बिजनेस, आवर कॉमर्स इज एट दिस पीक स्टेज। दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल दिस लेटेस्ट स्टेज, इट वाज अकर्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू दिस स्टेज। बेटा नेक्स्ट द सेम टॉपिक, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स वाज देयर, जिसे बोलते हैं देसी बैंक, उस टाइम में काफ़ी प्रचलित थे। तो जो आज के डेट में मॉडर्न बैंकिंग इज देयर, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। वहाँ पे देसी जो मतलब जिन्हें साहूकार बोलते थे, वो दे वर डूइंग द बिजनेस ऑफ दिस बैंकिंग टाइप बिजनेस, एंड द मेन फंक्शंस वाज देयर। ठीक है, फंक्शंस क्या थे वहाँ पे, नंबर 1 डिपोजिटिंग द मनी,
ठीक है। नंबर 2 लैंडिंग ऑफ मनी एंड डीलिंग इन हुंडीज, dealing in hundis. These were the main functions that was done by the indigenous bankers. But at that time, depositing of money, the main function was there कि they deposit the money of the public, लोगों से पैसा जमा करते थे, जैसे आज के टाइम में आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड ऑन दैट deposit money, these indigenous bankers provide interest on their savings. Lending of money, वही जो amount deposited by the persons, by the people, they lend that money to the needy persons और as a loan उसको provide करते थे। Sometime they provide loan or mortgage, कुछ गिरवी रखते थे, land was there or some jewelry was there, और sometime वही लोन उसको मतलब आफ्टर रिसीविंग देयर सिग्नेचर, इस टाइप से भी वो उनको लैंडिंग ऑफ मनी वाज देयर। एंड डीलिंग इन हुंडीज, जैसे इट इज लाइक द चेक, ठीक है ना, डीलिंग इन चेक्स, तो राइटिंग ऑफ चेक्स वाज देयर, बट एट दैट टाइम एक्चुअली दिस टाइप ऑफ चेक्स वाज नॉट देयर, जो कि आज की डेट में है। तो डीलिंग इन हुंडीज मीन they charge very high rate of interest on these lending of money and in dealing in hundis. So these were the type of bankers at that time. और बेटा वो कुछ दूसरे टाइप के काम भी करते थे, जैसे यदि हम इनको स्पेकुलेटिव नेचर बोलते, नॉन स्पेकुलेटिव बोल दें हम, नॉन स्पेकुलेटिव एंड अदर वाज स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव भी मत मीन जिसे बोलते हैं ना हम कि सट्टा लगाना, कि वो अपना दुकानों को गिरवी रखना, एंड दिस टाइप ऑफ समटाइम दे डज द बिजनेस ऑफ कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट भी थे उस टाइम पे, जो इंडिजिनियस बैंकर्स थे। एंड अदर टाइप्स ऑफ मीन डीलिंग इन द फूड क्रेज, डीलिंग इन द जैगरी, दिस टाइप के काम भी वो एट द टाइम वाज वेरी मच पॉपुलर। तो बेटा दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एंड indigenous banking system at that time, and slowly after that now the modern banking system is with us. Now 1.4 business risk topic is there. Business risk. Business risk, there is always a risk in the business because the business is always risky, and risk is there. Risk किसे बोलते हैं? What do you mean by business risk? Business risk mean the possibility of inadequate profits. Mean कि जब आपको profits जितना होना चाहिए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, जितना एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए एक्चुअल में यदि प्रॉफिट उससे कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और सम टाइम पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। तो बेटा बिजनेस में हमेशा रिस्क है, आप बिजनेस को रिस्क से बचा नहीं सकते हैं। रिस्क इज अनअवॉइडेबल, रिस्क तो आपका रहेगा। एंड बेटा जो रिस्क है, आवर रिस्क इज डिपेंड ऑन अनसर्टेनिटीज, कि बिजनेस आपका अनसर्टेन है, अनिश्चित है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं वहाँ पे, कभी कुछ भी चेंजेस हो सकता है। समटाइम चेंज इन प्राइस इज देयर, चेंज इन फैशन इज देयर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कहीं पे। तो उन रिस्क को बच्चे हम जो है ना दूर नहीं कर सकते, उनको यस वी कैन मिनिमाइज दैट, उनको कम किया जा सकता है। तो वो हम वी विल डूइंग इन फर्दर डिटेल्स। तो बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क देखिए, नंबर 1 बेटा रिस्क इज अनअवॉइडेबल, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, कि रिस्क से बचा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो रिस्क तो आपको बियर करना ही पड़ेगा, एंड द बियरिंग ऑफ रिस्क इज कॉल्ड प्रॉफिट, बिकॉज ये एक मतलब स्टेटस है ये
कि बिजनेस में ज़्यादा रिस्क मोर प्रॉफिट। जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है प्रॉफिट वहीं पर होगा, एंड रिस्क इज देयर, उससे लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क इज अनअवॉइडेबल, रिस्क से आप बच नहीं सकते हैं। दूसरा बेटा, जो द रिवार्ड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड प्रॉफिट। बिजनेस में रिस्क है तभी आपको प्रॉफिट मिलता है, तो जो रिस्क का रिवार्ड है, जो इनाम है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब बेटा देन जो इसका मीन डिग्री ऑफ रिस्क इज वेरीज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स कि यदि आपका बिजनेस बड़ा होगा, बिजनेस इज लार्ज, देन मोर रिस्क विल बी देयर, एंड बिजनेस इज स्मॉल, देन द रिस्क मे बी स्मॉल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा बेटा, रिस्क को ना हम जो है ना, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है आपका, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस टाइप का है। इफ यूर बिजनेस इज ऑफ फैशनेबल गुड्स, देन देयर मे बी मोर रिस्क। इफ यूर बिजनेस इज ऑफ डेली रूटीन थिंग्स, देन जो रिस्क है वो आपका कम हो सकता है। सो रिस्क को हम जो है ना, मतलब बेटा अनअवॉइडेबल है, उसको कम किया जा सकता है बाय टेकिंग इंश्योरेंस और सम जो है ना कुछ मतलब उनको मिक्सिंग करके, यानी समथिंग इज देयर कि आप दूसरे बिजनेसमैन के साथ उस टाई अप कर सकते हैं, देन उसको कम किया जा सकता है, बट उससे आप बच नहीं सकते हैं, उसको उससे बचना मुश्किल है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है बेटा, टाइप्स ऑफ या causes of business risk। what are the causes of business risk? देखिए यहाँ पे कुछ एक causes हैं, मतलब जिनकी वजह से बिजनेस में रिस्क आता है। नंबर 1 इज देयर नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज इज देयर। नेचुरल कॉजेज भी जो नेचर की वजह से रिस्क कई बार क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सीजनल चेंजेस इज देयर। सीजन चेंज होता है आपका, ठीक है ना। सम टाइम हमारे बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेदर्स हैं, तो वो ड्यू टू दैट रीजन्स देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, ठीक है। नेचुरल कॉजेज इज देयर। कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस भी हैं बेटा। सम टाइम जियोलॉजिकल चेंजेस भी, या सम टाइम ड्यू टू अर्थक्वेक, बहुत सारा लॉसेज हो जाता है बिजनेस में। बहुत सारा आपकी फैक्ट्रीज जो है ना, मतलब उनमें भूकंप आ गया है, और देयर इज ए वेरी मच लॉस ऑफ गुड्स एंड मनी एंड सम टाइम लाइफ। तो बहुत सारा दीज आर द रिस्क ड्यू टू नेचर, तो इनको हम यहाँ पे। एंड सेकंड वन बेटा, जो हमारा मेन कॉज है, सेकंड इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज भी है ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, लोगों की वजह से। सम टाइम जो आपके कस्टमर्स हैं, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स मीन, देखिए जो आपके कस्टमर है, सम टाइम दे परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीदते हैं, एंड दे नेवर पेड देयर अमाउंट्स। दैट मीन्स कि दीज आर द बैड डेट्स फॉर द बिजनेस। बिजनेस का पैसा डूब जाता है, तो दिस इज द डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। सम टाइम डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी, जैसे सम टाइम एक कैशियर ऑफ ए बिजनेस, वो बिजनेस से मीन वो कर लेता है, चोरी कर लेता है, दैट इज ए लॉस बाय थेफ्ट फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है। तो इस टाइप के जो लॉसेज है ना, सम टाइम केयरलेसली, बिजनेस को केयरलेसली जो है ना रन किया जा रहा है। जैसे कोई एम्प्लॉइज या सम अदर पर्सन ही पुट्स सम बर्निंग बीडी और दैट, तो ये भी बिजनेस के लिए एक रीजन, एक कारण बनता है, कॉज ऑफ लॉस। और देन कॉजेज, थर्ड कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज बेटा, इकोनॉमिक कॉजेज भी जैसे चेंज इन फैशन, कि जो फैशनेबल जो प्रोडक्शन करते हैं द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे ड्यू टू चेंज इन फैशन की जो प्रोडक्शन उन्होंने किया, एंड यदि इफ देयर इज चेंज इन दैट फैशनेबल गुड्स, उसका ट्रेंड चेंज हो जाए, इट इज़ ए हैवी लॉस फॉर दैट बिजनेस। चेंज इन प्राइस इज देयर। कई बार प्राइसेज आपके डाउन हो जाती है, दैट मीन्स यू परचेज यूर रॉ मटेरियल, यूर जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें आप डील करते हैं, उनकी प्राइस डाउन हो, यू परचेज दैट गुड्स एट हायर प्राइसेज,
some higher prices, and after some time the prices was down, prices gets down, तो बेटा then there is a loss to that business. तो ये कुछ एक causes हैं, economic causes, ठीक है. change in fashion is there, change in price is there, and इसका लास्ट जो बेटा टाइप है हमारे पास, वो टाइप हो सकता है आपका, यस इसमें इकोनॉमिक कॉजेज बेटा ये भी है कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन. सम टाइम जो बिजनेसमैन आजकल का एक ट्रेंड है कि कुछ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, होम डिलीवरीज देयर, ठीक है ना, सम टाइम गारंटी वारंटीज देयर. तो ये जो फैसिलिटीज हैं नाउ ये दूसरे बिजनेसमैन को भी वो मतलब स्टार्ट करनी होगी, एंड सम टाइम देयर कॉज ए लॉस टू द अदर बिजनेस आल्सो. और लास्ट इसका जो एक वो है कॉज है अदर कॉजेस. अदर कॉजेस मीन जैसे नंबर 1 इसका एक पार्ट है नेचुरल कॉजेस. नेचुरल कॉजेस मीन बेटा ड्यू टू द पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड्स. मतलब आप इस ऐसी बिजनेस में आपकी भी डीलिंग है, आपका बिजनेस है जिसमें कि आप लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और सम अदर थिंग जो कि मतलब यदि वो खराब हो जाए तो देन it is a loss for that business. ठीक है. Natural causes there. कुछ technical causes हैं. Technical causes mean बेटा देखिए there is always a change in the environment. नई नई टेक्निकल टेक्निक्स आती हैं, नई नई मशीनरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, नई नई कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं यहाँ पर. तो बेटा ड्यू टू दैट इन्वेंशन जो नई नई कुछ एक न्यू टेक्निक्स आएंगी, तो देर इज ए नीड टू रिप्लेस द ओल्ड वंस, उनको बदलना पड़ेगा हमें. देन देर इज ए सम लॉस मे बी देयर कि यू हैव टू पुट सम मनी, एक्स्ट्रा मनी इन द न्यू टेक्निक मशीन्स. ठीक है. टेक्निकल कोजेस देयर, मैकेनिकल कोजेस इज देयर. मैकेनिकल कोजेस मीन सम टाइम देखिए जब कई बार ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाज देयर इन द मशीन, एंड बाद में सम टाइम आफ्टर लेटर ऑन when you run your machine, ठीक है, तो there may be some blast and it may cause a great loss of life and money and others to that business. तो ये भी कुछ एक causes है. and बेटा one more point is there, that is loss due to managerial policies. ठीक है. managerial policy that means sometime जो policies adopted by your managers, management, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, एफिशिएंटली यू कांट गेट द result targets of your business. So due to that managerial policies, business bear the loss. These are the causes of business risk. तो बेटा इन causes से हमने देख चुके हम कि इन causes से आप बच नहीं पाएंगे. ओनली जिसका सोल्यूशन इज देयर कि आपको बहुत बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ना उसके साथ अपडेट करना है. एंड सम टाइम वी कैन मिनिमाइज आवर रिस्क बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. Otherwise, risk should be beared by the businessman. It is our topic, today's topic. Thank you very much.